یہ کہانی ایک ایسے خواجہ سرا کی ہے جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر در در بھیک مانگ کر اور ناچ گانے میں گزار دی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کی تان و تشنی اس کا استقبال کیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی کسی فنکشن میں جاتا تو وہاں موجود لوگ اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے اور اس پہ جملے کستے رہتے۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر آخر اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی، لیکن بھیک تو کوئی کیا دیتا، لوگوں کی پھٹکار اور گالیوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ ضائع کر دیا تھا۔ کاش وہ اپنے والدین کی بات مان لیتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن بھلا اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو شاید شروع سے ہی خود کو ایک عورت سمجھتا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہ ایک کڑیل مرد تھا، لیکن اندر سے گہرے جذبات رکھنے والی ایک عورت۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لوں گی۔ بس اتنا کہہ کر وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور نیچے فرش پر ایسے لیٹ گیا جیسے 10 سال کا بچہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ مسلسل اپنی زندگی کو کوس رہا تھا۔ یہ ایک نینا نامی خواجہ سرا تھا جو تقریباً آج سے 30 برس پہلے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ اپنے بچپن کے اوائل سے ہی اسے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا۔ گاؤں کے باقی بچے تو گلیوں میں گھومتے پھرتے اور اکثر کھیلا کرتے، لیکن نینا کبھی بھی گھر سے باہر نہ گیا تھا، بلکہ اسے تو گھر میں ہی زیادہ سکون ملتا تھا۔ خصوصاً جب اس کی ماں روٹی پکایا کرتی تھی تو وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اسے آٹے کے گول گول پیڑے بنا کر دیتا، یا پھر گھر کا جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا اور صاف صفائیاں کرنا پسند تھا۔ جلد ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، لیکن بھلا وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے جسمانی خد و خال مردوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور وہ بڑا ہوتا گیا۔ اب اس کے اپنے گھر والے اکثر اسے تانا دیا کرتے اور اب نعمان کی جگہ اسے نینا بلایا جانے لگا تھا۔ گھر ہو یا سکول، وہ جہاں بھی جاتا گاؤں کے سبھی لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ آخر ان حالات سے تنگ ہو کر ایک دن اس نے اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور شہر میں آ کر ایک خواجہ سراؤں کی کمیونٹی میں رہنے لگا۔ لیکن نہ جانے آج ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے تمام گزرا ہوا پل شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں بہت نادم تھا کہ کاش اپنے والدین کی بات مان لیتا تو اس کی زندگی برباد نہ ہوتی۔ آج وہ زندگی کی اس نہج پر آ چکا تھا کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے زاروں زار روئے جا رہا تھا۔ بس اسی حالت میں وہ کئی گھنٹوں تک زمین پر پڑا رہا۔ اس کے دل و دماغ پر صدمے نے گہرا اثر ڈالا تھا۔ اس کی روح اس قدر بے چین تھی جیسے کوئی آزاد پرندہ کسی نے زبردستی پنجرے میں قید کر دیا ہو۔ اس کی روح اسے اپنے جسم میں آج کچھ اس طرح ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلد ہی اپنی روح کے پنچھی کو اس پنجرے سے آزاد کر دینا چاہتا تھا۔ بس اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو تھم گئے اور جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ اب اس کی بے چین روح اس کے بے جان جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی تھی اور اپنے دھکوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی تھی۔ اس نے زمین پر پڑے ہوئے اپنے بے جان جسم کی جانب ایک نظر حقارت سے دیکھا۔ یہ وہ جسم تھا جس میں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، لیکن ایک بھی دن وہ اس جسد خاکی میں خوش نہ رہ سکی تھی۔ نہ جانے دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی اس کی روح کو قرار نہ آ رہا تھا۔ اسے کوئی ایسا جسم چاہیے تھا جو اس کی روح سے مطابقت رکھتا ہو۔ بس اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روح اپنے نئے جسم کی تلاش میں نکل پڑی۔ نادیہ کہاں ہو یار تم؟ دیکھو نا کتنی دیر ہو گئی میں آفس سے واپس آ چکا ہوں، لیکن اب تک تمہارا کوئی پتہ نہیں۔ عدیل نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے نادیہ کو پھر سے آواز دی۔ اس سے آفس سے آئے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا نادیہ کو آوازیں دیے جا رہا تھا، جبکہ نادیہ صاحبہ بستر پر دراز اپنا میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس کی سٹوری ختم ہوئی تو اس کے لاشعور میں عدیل کی آواز ابھرنے لگی۔ اوہو، یہ سٹوری میں تو بھول ہی گئی کہ عدیل مجھے کب سے آوازیں دے رہے ہیں۔ وہ فوراً ہی چونک گئی اور اپنے بیڈ سے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔
ओ अदील, आप आ गए। मैं तो समझी थी आप देर से आएंगे। सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला, मैं मैगजीन पढ़ रही थी। वो मुस्कुराते हुए अदील के पास बैठ गई। जैसे ही नादिया अदील के पास बैठी तो अदील ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। जी जनाब, मैं जल्दी ही आ गया हूँ, क्योंकि आज दिन ही कुछ ऐसा था। मगर तुम्हें तो अपने मैगजीन्स और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि कुछ देर अपने शौहर को ही वक्त दे दो। मैं जब भी घर आता हूँ तुम इन्हीं मैगजीन में मसरूफ होती हो या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गई होती हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम मुझे भूलती जा रही हो, मगर तुम्हारे साथ मेरा गुजारा हुआ एक एक पल मुझे कभी नहीं भूल सकता। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करेंगे। अदील ने खुशगवार लहजे में नादिया की जानिब देखते हुए कहा। ओ अदील, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मेरी तबीयत आज जरा कुछ बोझल है, वरना आपको तो पता है कि आज मेरी दोस्त सायरा की पार्टी थी। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं वहां ना चली जाती। बस रहने दीजिए, फिर कभी चलेंगे। इतना कहकर नादिया ने एक गहरा सांस लिया और छत की जानिब देखने लगी। उसके चेहरे पर संजीदगी के आसार वाज़ेह थे। यार नादिया, समझने की कोशिश करो, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। कम से कम आज तो हमें अपना वक्त अच्छा गुजारना चाहिए। आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो? मैं काफी महीनों से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे और इस घर से लापरवाह होती जा रही हो। इतना कहकर अदील ने नादिया का हाथ छोड़ दिया और वहां से उठने लगा। जैसे ही अदील अपनी जगह से उठा तो नादिया को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बढ़कर अदील का हाथ थाम लिया। ओ सॉरी अदील, मेरा मतलब ये नहीं था। प्लीज आप गलत मत सोचा करो। देखो, हमारी लव मैरिज है और अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? तुम्हें शुरू से ही पता है कि मैं किस तबीयत की मालिक हूँ। चलो खैर, मुंह ना फुलाओ, मैं अभी 15 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर नादिया वहां से उठ गई। अदील और नादिया की शादी को तकरीबन 1 बरस बीत गया था। उन दोनों ने पसंद की शादी की थी। अदील और नादिया के अब्बू दोनों ही आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। जल्द ही उन्हें यह एहसास होने लगा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। सो उन्होंने अपने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए नादिया और अदील की शादी कर दी। ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि नादिया और अदील के अब्बू दोनों ही शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। नादिया शुरू से ही लाड प्यार में पली थी और उसकी दिलचस्पी घर की बजाय मौज मस्ती में ज्यादा रहती थी। वो सारा सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ तरह तरह की पार्टियां अटेंड करने में गुजार देती, और कभी कभी तो ये भी होता था कि ये पार्टियां लेट नाइट तक चला करती थी। लेकिन अदील और उसके वालिद हमेशा नादिया को प्यार से ट्रीट किया करते। उस रात भी डिनर से वापसी पर अदील और नादिया बहुत खुश थे। शायद आज काफी महीनों बाद उन्होंने एक साथ बैठकर खाना खाया था और बड़ी खुशगपियां भी लगाई थी। उन्हें अपनी मोहब्बत में गुजारा हुआ तमाम वक्त आज बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था, और पिछली तमाम बातें भूलकर वो अपनी आइंदा की जिंदगी के बारे में एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। ये शायद रात के 1 बजे का वक्त होगा। तन्हा और सुनसान सड़क पर अदील अपनी गाड़ी भगाता हुआ अपने घर की जानिब रवा दवा था। साथ ही साथ वो नादिया से भी बातें कर रहा था। लेकिन अचानक बेध्यानी में उसे यह अंदाजा ना हुआ कि सामने से एक ट्रक आ रहा है। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर पड़ी तो वो ट्रक उनके इतना करीब आ चुका था कि अदील को संभलने का मौका ही ना मिला। उसने अपनी गाड़ी को एक जोरदार कट लगाई और ट्रक से बचते हुए सड़क की साइड में खड़े हुए एक खंबे से जा टकराया। पूरी फिजा उस वक्त एक खौफनाक धमाके से लरज गई, जिसने मौके पर मौजूद हर शख्स को दम बखूद कर दिया। सुबह जब अदील की आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के एक बेड पर पाया। होश में आते ही उसके जहन पर पहला ख्याल अपनी बीवी नादिया का था। उसने परेशान नजरों से अपने वालिद को मुखातिब किया। पापा, नादिया ठीक तो है ना? वो कहाँ है? अदील की ये बात सुनकर उसके वालिद एक लम्हे को उदास से हो गए। बेटा अदील, मैंने हमेशा तुम्हें हालात से लड़ने का और सब्र करने का दर्स दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को हौसले से सुनोगे। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना हरगिज नहीं है, और मैं तुमसे कोई बात छुपाना भी नहीं चाहता। बेटा, वो नादिया बेटी मर चुकी है। इतना कहकर अदील के वालिद की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए।
और उन्होंने अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया। अदील को अपने वालिद की बात अपने जहन पर किसी हथौड़े की तरह मालूम हुई। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, नादिया नहीं मर सकती। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग शल हो रहा हो। ये बात उसे किसी भी तरह से काबिल कबूल न थी। वो सोच भी ना सकता था कि नादिया इतनी जल्दी मर जाएगी। उसने तो अपनी जिंदगी के चंद ही माह अपनी बीवी के साथ गुजारे थे, भला इतनी जल्दी कैसे? उसका दिल गम से निढाल हो रहा था। उसने अपने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे वो दर्द से कराह उठा। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोटें आई थी। बेटा अदील, तुम उठने की कोशिश ना करो, डॉक्टरों ने तुम्हें बेड रेस्ट का कहा है। बस बेटा खुदा की रजा पर राजी रहो। शायद तुम्हारा और नादिया का साथ यहाँ तक ही था। ये सुनते ही जैसे अदील की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया। उसके वालिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देने की कोशिश की, मगर भला ऐसी कौन सी तसल्ली थी जो उसे उसकी नादिया वापस ला कर देती, जिस नादिया से वो इतनी मोहब्बत करता था। आज उसके जनाजे में भी शरीक ना हो पा रहा था। वो तो बस बेड पर पड़ा हुआ अश्कबार निगाहों से अपने बाप की तरफ देखे जा रहा था। पापा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं आखिरी बार नादिया को देखना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम उठ भी सको। प्लीज समझने की कोशिश करो। खुदा ने चाहा तो हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। बस इतना कहकर अदील के वालिद वहां से चले गए। अपने वालिद के जाने के बाद अदील काफी देर तक रोता रहा और इसी सदमे में बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो डॉक्टर उसके सर पर मौजूद था। इससे पहले कि अदील डॉक्टर से कोई सवाल करता, अचानक एक जोरदार धमाके से रूम का दरवाजा खुला और अदील का नौकर दाखिल हुआ। वो इस कदर तेजी से घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ था कि उसे ये एहसास ना रहा वो एक इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे में खड़ा हुआ है। इसी दौरान उसका हाथ टेबल पर पड़े हुए गिलास से टकराया तो गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ये गिलास टूटने की आवाज थी जिसने अदील को फौरन बेदार कर दिया। उसने चौंकते हुए दरवाजे की जानिब देखा। क्या हुआ वसीम? अदील ने हैरत भरी नजरों से वसीम की जानिब देखते हुए कहा। वो साहब जी, वो नादिया बीबी। हाँ हाँ वसीम, बोलो क्या हुआ नादिया को? वो साहब जी, नादिया बीबी जिंदा है। क्या कहा? नादिया का नाम सुन के जैसे उसके जिस्म में एक नई जिंदगी दौड़ गई थी। जी साहब, नादिया बीबी मरी नहीं बल्कि दोबारा जिंदा हो चुकी हैं। अदील की आंखें हैरत से फटी जा रही थी और उसे अपने कानों पर यकीन ना हो रहा था। वसीम, ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? जी साहब जी, मैं सच कह रहा हूँ। बेशक आप बड़े साहब से पूछ लें। वसीम निहायत खौफनाक अंदाज में हकलाने लगा। अदील ने अपने मुलाजिम की ये बात सुनकर फौरन ही अपने वालिद को फोन लगाया, लेकिन उसकी हैरानी की कोई इंतहा न रही। वसीम बिल्कुल सच कह रहा था। शायद ये खुदा का एक बहुत बड़ा मौजज़ा हो चुका था। जब नादिया की मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ पहुंचाया गया तो वो वहां उठकर बैठ गई और अपने जिस्म पर कफन देखकर चीखने लगी। वहां मौजूद कई लोग तो खौफ के मारे जनाजा छोड़कर भाग गए। नादिया के मरकर दोबारा जी उठने की खबर ने पूरे शहर में एक सनसनी फैला दी थी। डॉक्टरों ने जब नादिया का मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अक्सर औकात इंसान की हरकतें कलब बंद हो जाने से लोग उसे मुर्दा तस्वुर करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, बल्कि दिल इस कदर आहिस्ता हो जाता है कि डॉक्टर्स भी धोखा खा जाते हैं। शायद नादिया के साथ भी यही हुआ था। बस यही सोचते हुए वो सब लोग बहुत खुश थे। खसूसन अदील की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उसने दोबारा अपनी नादिया को वापस पा लिया था। तकरीबन एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद अदील को छुट्टी मिल चुकी थी और वो भी घर वापस आ गया था। अब अदील और नादिया हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे थे। नादिया की नई जिंदगी ने जैसे उसे यकसर बदल दिया था। अब वो मैगजीन पढ़ने या पार्टियां अटेंड करने की बजाय घरदारी के कामों में हिस्सा लेने लगी थी। अब तक वो जिन कामों को हाथ लगाना अपनी तौहीन समझती थी, अब वही काम बड़े शौक से किया करती। ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल एक आम सी औरत हो जो अपने शौहर की खिदमत में हर वक्त कोशां रहती हो। वैसे भी एक औरत अपनी खूबसूरती संवारने से ज्यादा अपने घर को संवार कर खूबसूरत लगती है। अब अदील को भी नादिया पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। उसका बस नहीं चलता था
کہ वो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा नादिया के साथ गुजारे, मगर भला उसे क्या इल्म था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई है। उस रात वो काफी देर से सोया था, जाने क्यों उसके जिस्म में एक बेचैनी सी थी। चंद लम्हे नींद करने के बाद अचानक खुद ब खुद ही उसकी जाग हो गई थी। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और साइड पर पड़े हुए टेबल लैंप को ऑन किया। नादिया उसके बराबर में ही लेटी हुई थी। अदील ने मुस्कुराते ही जैसे अपनी नजर नादिया पर डाली तो वो देखकर हैरान हो गया कि नादिया बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी और उसकी आंखें खौफनाक हद तक खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हवासों में ना हो, वो बस टिकटिकी बांधे छत को ताड़े जा रही थी। अदील को ऐसा महसूस हुआ जैसे नादिया की रूह उसका साथ छोड़ गई हो। उसने फौरन ही हाथ बढ़ाकर नादिया की नब्ज चेक की, लेकिन नादिया का जिस्म तो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो चुका था। उसके जिस्म में जिंदगी की कोई भी रमक बाकी न थी, वो मर चुकी थी। ये देखकर अदील घबरा गया और फौरन ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से अपने कमरे के बाहर की तरफ भागा ताकि अपने वालिद को इस बारे में आगाह कर सके। वो उजलत में जैसे ही बाहर की तरफ भागा तो उसका पांव बेड के कोने से टकराया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और जमीन पर गिरते ही उसका सर एक तरफ बेड के कोने से जा टकराया। ये चोट इतनी शदीद थी कि अदील उसी वक्त बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर मौजूद था और नादिया उसके साथ ही बैठी थी। उसके हाथ में एक सूप का प्याला था। अदील को होश में आता देखकर वो मुस्कुराई। अदील को ये मुस्कुराहट थोड़ी अजीब लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो अपनी आंखें फाड़े मुसलसल नादिया को देखने लगा। कैसी तबीयत है आपकी? नादिया अदील से मुखातिब हुई। मैं ठीक हूँ, अदील ने बदस्तूर नादिया को घूरते हुए जवाब दिया। अदील, आप कैसे गिर गए थे? सुबह जब मैं उठी तो आपको बेहोश पड़ा हुआ देखकर चीखने लग गई। मेरे चीखने की आवाज सुनकर अंकल और आंटी दोनों कमरे में आ गए और उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। हाँ यार नादिया, मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे चक्कर सा आ गया था। खैर पापा कहाँ हैं? अदील ने मौजू को चेंज करते हुए कहा। वो तो ऑफिस चले गए हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उनकी कॉल आई थी और वो आपकी तबीयत का पूछ रहे थे। नादिया ने अदील को जवाब दिया। बस वो दिन था कि अदील की बर्बादियों का आगाज शुरू हो गया। हर रात उसकी अचानक जाग हो जाती और वो नादिया को ऐसे ही बेजान पाता। जैसे ही सुबह होती तो नादिया अपने बिस्तर से यूं उठ खड़ी होती जैसे इसे कभी कुछ ना हुआ हो। अदील को अब ये एहसास होने लगा था कि वो एक जहनी मरीज बन चुका है। आखिर एक दिन चारों नाचार होकर उसने अपने वालिद को तमाम परेशानी बता दी। अदील की ये बातें सुनकर उसके वालिद भी परेशान हो गए, लेकिन भला वो क्या कर सकते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा। चंद दिन बाद फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी अदील को हरगिज भी तवक्को न थी। एक रात अदील हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठा। जैसे ही उसने साइड पर पड़ा हुआ टेबल लैंप ऑन किया तो ये देखकर हैरान हो गया कि नादिया अपने बिस्तर पर ना थी। पहले पहल तो उसे ऐसा लगा जैसे नादिया पानी पीने या वॉशरूम गई होगी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो ना आई तो अदील अपने बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। वो ये देखकर हैरान था कि उसके तमाम घर वाले गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन नादिया का तो कहीं कोई पता न था। लेकिन अचानक उसकी नजर घर के मेन गेट की जानिब पड़ी, जिसके दोनों पट खुले हुए थे। अदील ये मंजर देखकर हैरान हो गया। वो घर के हाल कमरे से निकलकर चलता हुआ बाहर सहन की तरफ आया। क्या देखता है कि उसके दोनों चौकीदार अपनी अपनी कुर्सियों पर बेहोशी की नींद सो रहे हैं। ये मंजर देखकर अदील एक लम्हे को भौचक्का सा रह गया और वापस भागते हुए कदमों से घर में दोबारा दाखिल हुआ। उसने अपने घर के तमाम कमरे और वॉशरूम छान मारे, लेकिन नादिया का कहीं कोई पता न था। वो फिर दौड़ता हुआ बाहर सहन में आया और अपनी गाड़ी में बैठने लगा। वो अपने दिल में सोच रहा था कि नादिया काफी दिनों से अपसेट थी। हो सकता है उसमें किसी किस्म का दौरा पड़ा हो या फिर वो उसे बिना बताए अपनी किसी दोस्त के साथ चली गई हो। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता था? आज तक तो नादिया ने ऐसा कुछ ना किया था। अदील के जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो जैसे ही अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा तो अचानक उसे अपनी गाड़ी के बैक मिरर में नादिया गेट के अंदर एंटर होती हुई नजर आई। वो एक सफेद लिबास में मलबूस थी और उसके बाल खुले हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही हो, मगर उसकी आंखें खुली हुई थी। उसे इस हालत में देखकर
अदील एक लम्हे को खौफ से झिंझला गया। नादिया चलती हुई उसकी गाड़ी के पास से ऐसे गुजर गई जैसे उसने अदील को देखा ही ना हो। वो उसे नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई और फिर हॉल कमरे से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर वाले कमरे की जानिब चली गई जहां पर उन दोनों का बेडरूम था। अदील कुछ देर तक तो इसी हालत में आंखें फाड़े इधर उधर देखता रहा। उसे कुछ भी समझ ना रही थी कि क्या किया जाए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गाड़ी से निकलकर नादिया के पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि नादिया अपनी जगह पर सोई हुई थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कई घंटों से बेखबरी की नींद सोई हो। खौफ के मारे अदील के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो डरते डरते बेड के करीब आया और नादिया के साथ लेट गया और उसकी हिम्मत ना हो रही थी कि नादिया से कोई सवाल करे। बस वो तमाम रात यूं ही जागता रहा। अगली रोज जब सुबह हुई तो नादिया मामूल की तरह उठी और अपने घर के कामों में मशगूल हो गई। उसे देख के जरा भी ऐसा ना लगता था कि घर में कोई इस तरह से अजीबोगरीब वाकया हुआ था। अदील के दिल में एक खौफ सा बैठ गया था, लेकिन ये बात उसने अपने वालिद या घर के किसी मेंबर से ना की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग डर जाएं। जब रात हुई तो काफी देर तक नादिया अदील से बातें करती रही और ठीक अपने टाइम पर सो गई। लेकिन भला अदील को कहाँ नींद आती थी। वो खौफ और परेशानी की मिली जुली कैफियत में नादिया की तरफ करवट लिए उसे देखे जा रहा था। जो ही रात के 2 बजे का टाइम हुआ तो नादिया अपने बिस्तर से उठी। उसने एक गहरी नजर अदील की जानिब देखा। वो सो रहा था। बस ये तसल्ली करके वो अपने बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन उसे मालूम न था कि अदील काफी देर से जाग रहा था और उसने अपने दिल में सोच रखा था कि अगर आज नादिया घर से बाहर जाती है तो वो उसका पीछा जरूर करेगा। नादिया सीढ़ियां उतरते हुई हॉल कमरे में आ पहुंची। वो जिस दरवाजे के सामने आती वो बिना हाथ लगाए ही खुद ब खुद खुल जाता। हॉल कमरे से होती हुई वो बाहर सहन की तरफ आई। घर का मेन गेट जैसे पहले ही उसी के लिए ही खुला हुआ था और चौकीदार गहरी नींद सो रहे थे। वो उन्हें नजरअंदाज करती हुई घर से बाहर निकल गई। अदील भी ठीक उसके पीछे पीछे चलता हुआ घर के सहन में आ मौजूद हुआ। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और आहिस्ता आहिस्ता नादिया का पीछा करने लगा। लेकिन गहरे और घुप अंधेरे में उसे नादिया ठीक से नजर ना आ रही थी। दूर से ही उसे नादिया का एक सफेद सा हयोला दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और नादिया का पीछा करने लगा। उसने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ रखी ताकि नादिया को किसी किस्म का भी शक न गुजरे। नादिया ठीक चलती हुई अपने घर वाली गली के बाईं जाने मुड़ गई और फिर सीधा चलने लगी। उसका रुख अब शहर के मरकज की जानिब था। ये शहर का वो दरमियानी हिस्सा था जहां रात देर गए तक लोगों की आमदोरफ्त रहा करती थी। नादिया बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी कॉलोनी की इस सुनसान सड़क पर चलती हुई जा रही थी। फिर एक दो मोड़ मुड़ने के बाद उसने अपना रुख शहर की मरकजी सड़क की जानिब मोड़ दिया। अब वो चलती हुई मरकज के बीचों बीच आ गई थी, जबकि उसको ये इल्म न था कि पिछले 10 मिनट से अदील उसका पीछा कर रहा है। वो चलते चलते एक सिग्नल के करीब रुक गई जहां पर चंद औबाश किस्म के नौजवान खड़े हुए थे। शायद उनमें से तो कुछ नौजवानों ने शराब तक पी रखी थी। नादिया सीधी चलती हुई उनकी तरफ गई और उनकी तरफ अपना हाथ ऐसे फैलाया जैसे कोई भिखारी किसी से भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है। नादिया को देखते ही उन नौजवानों ने एक कहकहा लगाया और उस पर आवाजें कसने लगे, लेकिन नादिया ने उन पर कोई तवज्जो न की और ठीक चलती हुई एक दुकान में घुस गई। वहां जाकर भी उसने वैसे ही भीख मांगने वाले अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। दुकान में बैठे हुए शख्स ने एक 10 का नोट उसकी जानिब बढ़ाया और उसने वो नोट लपक लिया। वो इठलाती हुई दुकान से बाहर निकली। उसके चेहरे के तासुरात से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अपना बहुत बड़ा हदफ मुकम्मल कर लिया हो। लेकिन उसे मालूम न था कि सड़क की दूसरी तरफ अदील उसे काफी देर से देखे जा रहा था। अदील का मुंह खुला हुआ था और वो फटी फटी निगाहों से नादिया की तमाम हरकत का जायजा ले रहा था। अब नादिया दुकान से निकलकर एक सिग्नल पर आ रुकी और वहां पर खड़े हुए चंद लोगों से भीख मांगने लगी। अदील ने काफी देर तक तो सब्र किया, लेकिन अब उसके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। आखिर भला उसे क्या कमी थी
अरबों रुपए रखने वाली एक लड़की आज सड़कों पर इस तरह क्यों भीख मांग रही है? बार बार अदील के जहन में यही सवाल उठ रहा था। आखिर मैंने नादिया की खिदमत में कौन सी कमी छोड़ दी थी कि वो आज इस नहज पर आ गई। खैर, अदील ने अब फैसला कर लिया था कि वो नादिया से जरूर पूछेगा उसे किसने इजाजत दी कि दो खानदानों की इज्जत को खाक में मिला दे। उसने अपनी गाड़ी फौरन ही नादिया की जाने बढ़ा दी। वो अपनी सिग्नल पर उन लोगों से भीख मांग रही थी। जैसे ही अदील नादिया के करीब आकर रुका तो उसने फौरन ही नादिया को आवाज दी, नादिया, ये क्या कर रही हो? जैसे ही अदील की आवाज नादिया के कानों में पड़ी तो उसने फौरन पलटकर अदील की जानिब देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, मगर अदील ने उसे नजरअंदाज करते ही फौरन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। नादिया, चलो गाड़ी में बैठो। जैसे ही अदील गाड़ी से उतरा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो लड़की नादिया नहीं बल्कि एक 40 साल का ख्वाजा सरा था जो गुस्सीली नजरों से अदील की जानिब देखे जा रहा था। उसने जोर से दोनों हाथों से ताली बजाई। क्या हुआ बाबू? लगता है आज तुझे अपनी बीवी से मार पड़ी है, तभी तो गुस्से से इतना पागल हो रहा है। मैं नादिया नहीं बल्कि नैना हूं, नैना। इसके बाद उस ख्वाजा सरा ने एक जोरदार ताली बजाई और अपना हाथ अदील के सामने फैला दिया। चल निकाल मेरा 10 का नोट, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं टाइम खोटी करने के लिए। लेकिन उसकी ये बात सुनकर अदील जैसे हक्का बक्का रह गया था। भला ये कैसे मुमकिन था? वो अपने घर से तो नादिया का पीछा करने निकला था, लेकिन यहाँ तो एक ख्वाजा सरा मौजूद है। उसे अच्छी तरह से यकीन था कि उसने नादिया को अपनी नजरों से ओझल ना होने दिया था। तो फिर भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नादिया ने एकदम ही ख्वाजा सरा का रूप कैसे धार लिया हो? खैर, अदील की हालत उस वक्त ऐसे हो रही थी जैसे काटो तो बदन में लहू ही नहीं। वो हैरत से मुंह खोले फटी फटी आंखों से ख्वाजा सरा को देखे जा रहा था। उसने अपनी जेब से एक 100 का नोट निकालकर ख्वाजा सरा की जानिब बढ़ा दिया और वो उसे दुआएं देता हुआ आगे की जानिब बढ़ गया। अदील कुछ देर तो खौफ और हैरत के मारे फुटपाथ पर खड़ा होकर ख्वाजा सरा को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसके जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। हो सकता है मेरी नजरों ने धोखा खाया हो। हाँ, शायद मैंने घर तो पूरी तरह से चेक किया था, लेकिन वॉशरूम देखना भूल गया था। हो सकता है नादिया वॉशरूम में ही हो। बस इतना सोचकर उसने अपनी गाड़ी वापस घर की जानिब मोड़ ली। जैसे ही वो अपने घर आया तो घर का गेट वैसे ही खुला हुआ था और चौकीदार बेहोशी की नींद सो रहे थे। वो अपनी गाड़ी से उतरा और दोनों चौकीदारों को झिझोड़ा। तुम लोग यहाँ सो रहे हो और घर का दरवाजा खुला हुआ है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भला किस चीज की तनख्वाह लेते हो तुम लोग? अदील जैसे उन लोगों पर बरस पड़ा था। नहीं नहीं सर जी, आज जरा हम थके हुए थे, बस इस वजह से शायद आंख लग गई होगी। आप किस वक्त आए सर? सॉरी सर। वो अपनी इस गलती पे बहुत ही नादिम थे। खैर, अदील ने उन्हें नजरअंदाज किया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे में आया तो ये देखकर हैरान हो गया कि नादिया तो अपनी जगह पर वैसी ही लेटी हुई थी जैसे कई घंटों से बेखबरी की नींद सो रही हो। वो खुद को कोसता हुआ बेड के दूसरे किनारे पर आकर बैठ गया। वो खौफ और हैरत की मिली जुली नजरों से नादिया की जानिब मुसलसल देख रहा था, मगर नादिया तो जैसे कई घंटों से बेखबरी की नींद सोई थी। अदील अपने बिस्तर से उठा और सीधा अपने वालिद की कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वालिद के कमरे के पास जाकर वो एक लम्हे को रुक गया। नहीं, सुबह पापा से बात करूंगा, अभी वो सो रहे होंगे, इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। ये सोचकर अदील वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। जब सुबह हुई तो मंजर चेंज था। नादिया ठीक रोज की तरह अपने कामों में मशगूल थी, लेकिन आज रात अदील ने फैसला कर लिया था कि वो इस मामले को हल करके ही छोड़ेगा। आज रात तो वो काफी देर तक जागता रहा, लेकिन नादिया अपने बिस्तर से ना हिली। बस इसी परेशानी में न जाने कब अदील को नींद आ गई। उसे कुछ मालूम ना हुआ। जब उसकी आंख खुली तो शायद ये रात के 3 बजे का वक्त था। नादिया आज फिर से अपने बिस्तर पर मौजूद न थी। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे से नीचे आया और जोर जोर से अपने वालिद के कमरे वाले दरवाजे को पीटने लगा। अगले ही लम्हे उसके वालिद अपने रूम से बाहर आ गए। क्या हुआ बेटा अदील? क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लेकिन अदील ने उन्हें कोई जवाब न दिया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कहीं नादिया की तबीयत तो खराब नहीं? नहीं नहीं पापा, मुझे इस बारे में ही बात करनी है। बस इतना कहकर अदील रोने लगा और अपने वालिद को वो तमाम कहानी सुना दी जो कल रात उसने अपनी आंखों से देखी थी। पापा, अब भी नादिया अपने कमरे में मौजूद नहीं। इतना कहकर अदील ने अपनी गर्दन को नीचे की जानिब झुका लिया। अदील के वालिद ने सारी स्टोरी सुनने के बाद अदील के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम फिक्र ना करो, कल सुबह होते ही मैं जरूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। अगली सुबह अदील और उसके वालिद मौलवी शफीकुर रहमान के पास गए और उन्हें अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात से आगाह किया। मौलवी साहब ने कुछ देर तक तो अपना हिसाब किया, फिर वो अदील के वालिद से मुखातिब हुए। सेठ साहब, मुझे तो ये मसला काफी पेचीदा लग रहा है। मेरा कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। मेरे ख्याल से मैं इस मसले का हल उस वक्त तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक कि आपकी बहू से ना मिल लूं। बस आज ठीक असर की नमाज के बाद मैं आप लोगों के घर आ जाऊंगा, फिर देखते हैं कि क्या करना है। खैर, असर की नमाज के बाद मौलवी साहब ठीक अदील के घर टाइम पर आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने नादिया को देखा तो उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया हो गए, जबकि नादिया उन्हें देखते ही घबरा गई। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो थोड़ी देर तक तो उनके पास ही बैठी रही, मगर इस दौरान वो काफी गुमसुम रही। फिर वो फौरन ही उठी और अपने बेडरूम में चली गई। अदील और उसके वालिद नादिया की ये हरकत देखकर काफी परेशान हो गए थे, जबकि मौलवी शफीकुर रहमान साहब मुस्कुरा रहे थे। सेठ साहब, अपनी तबाही को अपनी तरफ बढ़ता देखकर परेशान होना कोई अनहोनी बात नहीं है। कि क्या मतलब? अदील के वालिद ने हकलाते हुए लहजे में मौलवी शफीकुर रहमान को मुखातिब किया। सेठ साहब, आपकी तमाम बातों का जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। मुझे बस आप आज का दिन दे दें, मैं अपने मुवक्किलात से पता लगा लूंगा कि ये क्या कहानी चल रही है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक तंबीह कर रहा हूँ, आज रात आप लोगों में से किसी ने नहीं सोना। मैं रात ठीक 12 बजे आऊंगा। बस इतना कहकर मौलवी साहब चले गए। मौलवी साहब के जाने के बाद नादिया काफी देर तक घबराई हुई और गुमसुम रही। तकरीबन रात 12 बजे के बाद मौलवी साहब दोबारा तशरीफ ले आए। उन्होंने आते ही अदील से कहा, मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाओ जहां पर तुम दोनों मियां बीवी सोते हो। ये सुनकर अदील ने इस बात में सर हिलाया और मौलवी साहब को लेकर ऊपरी कमरे की जाने बढ़ा। जैसे ही वो दोनों कमरे में आए तो अदील ये देखकर हैरान हो गया कि नादिया का जिस्म आज भी वैसे ही बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ है। मौलवी साहब ने आगे बढ़कर जैसे ही नादिया की नब्ज चेक की तो एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उन्होंने अदील को अपने साथ आने का इशारा किया। कुछ ही देर बाद वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। बेटा, मैं जो तुम्हें बताने लगा हूँ, ये सुनने से पहले तुम्हें अपने हवास को अपने काबू में रखना होगा। तुम्हारी बीवी नादिया आज से 3 माह पहले होने वाले एक्सीडेंट में मर चुकी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? नादिया तो बच गई थी। अदील की ये बात सुनकर मौलवी साहब मुस्कुराए। अरे बेटा, पूरी बात सुन लो। वो खुद तो मर गई थी, मगर उस मनहूस नामुराद ख्वाजा सरा की रूह तुम्हारी बीवी के जिस्म में हलूल कर गई थी। मौलवी साहब की ये बात सुनकर अदील और उसके वालिद को जैसे यकीन ना आ रहा था। क्या कहा? ख्वाजा सरा की रूह? अदील के वालिद ने चौंकते हुए मौलवी साहब की जानिब देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है सेठ साहब, और ये हकीकत आपको मानना पड़ेगी। अंदर कमरे में लेटी हुई नादिया का वजूद एक ख्वाजा सरा की मिल्कियत बन चुका है, और उसी ख्वाजा सरा की रूह ने आप लोगों का चैन छीन लिया है। मौलवी साहब की बात सुनकर अदील और उसके वालिद को एक झटका सा लगा। बेटा, असल में वो एक बदरूह है, लेकिन कुदरत के कामों में मुखल होकर अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात की तकमील करना चाहती है, मगर वो हर वक्त नादिया के जिस्म में नहीं रह सकती। इसलिए रात के वक्त को वो उसके जिस्म से निकलकर या कभी कभार उसके वजूद समेत ही अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकलती है। ये महज एक दिखावा है। वो ख्वाजा सरा की बदरूह तुम्हारी बीवी के मुर्दा जिस्म को इस्तेमाल कर रही है, जो कि सरासर ज्यादती है। वो बदरूह एक सजा की मुस्तहिक है। उसका किया हुआ ये काम गुनाह कबीरा से कम नहीं, और अब मैं उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। मौलवी साहब की ये बात सुनकर अदील एकदम से बोल उठा। मौलवी साहब, आप जो भी करें, मगर ये सब आप मेरे सामने करेंगे। मुझे यकीन नहीं कि मेरी नादिया मर चुकी है।
ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں ابھی پورے کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب دوبارہ عدیل کے کمرے کی جانب بڑھے۔ عدیل کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود تسبیح اٹھا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد عدیل نے وہ منظر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طویل قامت سایہ یک لخت کہیں سے نمودار ہو گیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ہیولہ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے ایک 6 فٹا کڑیال مرد ان کے سامنے کھڑا ہو اور غضبناک نگاہوں سے مولوی صاحب کی جانب دیکھ رہا ہو۔ اسے دیکھتے ہی مولوی صاحب فوراً اس سے مخاطب ہوئے۔ اے مردود نامراد، کیا تجھے پتہ بھی ہے کہ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ مولوی صاحب زور سے چلائے۔ پھر اگلے ہی لمحے کمرے میں اس ہیولے کی ایک سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے معاف کر دے مولوی صاحب، مجھے معاف کر دیں، واقعی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، مگر بھلا میں کیا کرتی؟ ساری دنیا کی نظر میں میں ایک تماشا بنی رہی، ہمیں تو کوئی بھی انسان نہیں سمجھتا۔ میں اپنی زندگی میں تو اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل نہ کر پائی، مگر مرنے کے بعد مجھے ایسا موقع ملا کہ جب لوگوں نے مجھے انسان سمجھنا شروع کیا، اور میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ میں ایک عورت کی زندگی بسر کروں اور کوئی مجھ سے محبت کرے۔ بس یہی میری زندگی کی ادھوری خواہشات تھیں جن کو میں پورا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے خودکشی کر لی تھی اور مرنے کے بعد اس عورت کے جسم پر قابض ہو گئی تھی، مگر میں ہر وقت اس کے جسم میں نہیں رہ سکتی تھی۔ بس میں ہر روز اس عورت کے وجود پر اپنا قبضہ جما کر اپنی خواہشات کی تکمیل کو نکل پڑتی تھی۔ میری مجبوری کو سمجھے، میں اپنی جگہ مجبور تھی۔ وہ گڑ گڑا کر مولوی صاحب کے قدموں میں گر گئی۔ دل تو کرتا ہے کہ تجھے وہ سزا دوں کہ دنیا تیرے انجام سے عبرت حاصل کرے، کیونکہ تو نے قدرت کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تو جانتا ہی ہوگا کہ خدا بھی ایک خاص وقت تک کسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ بس تیری ڈھیل اب ختم ہو چکی ہے اور تیرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، وہی تجھے سزا دے گا۔ تو جا، اب اس دنیا میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیولہ غائب ہونے لگا۔ عدیل سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مولوی صاحب نے گہرا سانس لیا اور عدیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا، زندگی صرف ایک ہی بندے پر ختم نہیں ہو جاتی۔ نادیہ کا غم کرنے کی بجائے اس کی روح کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کا وسیلہ بنو اور جلدی سے اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ عدیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک گہری نظر نادیہ کے وجود پر ڈالی اور اپنے آنسو پوچھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ نے ہماری کہانی کس شہر میں سنی؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر ہمیں اپنی کہانیاں ضرور شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔